everyone, online classes, class 6, subject science, chapter 12, part 3, the case of fused bulb. Fused bulb की का मामला. Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to a cell by wires without any gap in the circuit. This can happen if the bulb has got fused. When the filament of a bulb get broken, the bulb is said to be fused. Thus, a fused bulb has a broken filament. A bulb might get fused due to normal wear and tear of the filament, or when too much electricity is passed through it. Suddenly, a break in the filament of a bulb means a break in the path of electricity between the terminals of the cell. So have cell. कभी कभी एक विद्युत बल्ब सर्किट में से किसी भी अंतराल के बिना तारों से एक सेल से जुड़ा होने पर भी चमकता नहीं है। यह तब हो सकता है जब बल्ब को फ्यूज मिल गया हो। जब किसी बल्ब का फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब का फ्यूज कहा जाता है। इस प्रकार एक फ्यूज बल्ब में एक फिलामेंट होता है। एक बल्ब सामान्य पहनने और फिलामेंट के फाड़ने के कारण या जब बहुत अधिक बिजली इसके माध्यम से अचानक पारित हो जाती है तो फ्यूज हो जा सकता है। एक बल्ब के फिलामेंट में एक ब्रेक का मतलब सेल के टर्मिनलों के बीच बिजली मार्ग में एक ब्रेक होता है। So when we have a fused bulb in a circuit, the circuit gets open and electricity cannot pass through it since no electricity passes through the broken filament of a fused बल्ब तो के पास एक सर्किट में फ्यूज बल्ब होता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और इलेक्ट्रीशियन इसके माध्यम से नहीं गुजर सकता है, चूँकि कोई भी बिजली निश्चित के टूटे फिलामेंट से नहीं गुजरती है। Bulb. A fused bulb does not light up even if it is connected properly to a cell. We have made the electric circuit by using metal wires because copper wires are conductor or electricity. That is, copper wires can conduct electricity through them. If, however, we make a circuit using cotton thread or jute string, then the bulb will not glow. This is because the cotton thread or jute string are non-conductor of electricity. That is, cotton thread or jute string cannot conduct electricity through them. Thus, electricity can only flow if there is a complete circuit made up conductor. अब बल्ब एक फ्यूज बल्ब प्रकाश नहीं करता है, भले ही वह किसी भी सेल से ठीक से जुड़ा हो। हमने धातु के तारों का उपयोग करके विद्युत सर्किट बनाया है, क्योंकि तांबे का तार बिजली का संवाहक है। यही है, तांबे के तार उनके माध्यम से बिजली का संचालन या कर सकते हैं। अगर हालांकि हम सूती धागे या जूट के तारों का उपयोग करके एक सर्किट बना सकते हैं तो बल्ब चमक जाएगा। इसका कारण यह है कि सूती धागे या जूट के तार बिजली के गैस चालक होते हैं। यही कारण है कि सूती धागे या जूट के तार उनके माध्यम से बचलता का संचालन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार बिजली केवल तभी प्रभावित हो सकती है जब कंडक्टर से बना एक पूर्ण सर्किट हो। ए स्विच. If we want to turn on or turn off a bulb, we should connect a switch in the electric circuit. The switch is a simple device which is used to open or close a circuit. An open circuit means that there is a break in the circuit, whereas a closed circuit means that it is a complete circuit. So we can also say that a switch is a simple device which breaks a circuit or completes a circuit as desired by us. A switch works by opening and closing a gap in an electric circuit. When the switch is the off position, a gap opens up in the circuit
due to which electricity stop flowing in the circuit, and hence the electrical appliance stop working. On the other hand, when the switch is turned on, the gap in the circuit is closed and a complete circuit is made. Due to complete circuit, electricity start flowing in the circuit and electrical appliance will now start working. Thus, the purpose of using a switch is to turn on or turn off an electrical appliance by closing the circuit or opening the circuit respectively. एक स्विच, यदि हम एक बल्ब को आसानी से चालू या बंद कर सकते हैं तो हमें विद्युत सर्किट में एक स्विच का कनेक्ट करना चाहिए। स्विच एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट खोलने या बंद करने के लिए किया जाता है। एक ओपन सर्किट का मतलब कि सर्किट में एक विराम है, जबकि एक बंद सर्किट का मतलब है कि एक पूर्ण सर्किट है। इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि एक स्विच एक साधारण उपकरण है जो कि एक सर्किट को तोड़ता है, एक सर्किट को पूरा करता है, जैसा कि हमारे द्वारा वंचित है। एक स्विच विद्युत सर्किट में एक अंतराल खोलने या बंद करने में काम करता है। जब स्विच बंद स्थिति में होती है तो सर्किट में एक अंतराल खुल जाता है, जिसके कारण सर्किट में बिजली का प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देती है। जो दूसरी ओर एक जब स्विच को ऑन कर दिया जाता है तो सर्किट में गैप बंद हो जाता है और एक पूरा सर्किट बन जाता है। पूर्ण सर्किट के कारण सर्किट और इलेक्ट्रिकल उपकरण में बिजली प्रभावित होने लगती है, अब काम करना शुरू करता है। इस प्रकार स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य चालू करना है या एक विद्युत उपकरण को बंद करने सर्किट या क्रमशः सर्किट खोलने का होता है। The switch used in the circuits of electric bulbs and other electrical appliances in our homeworks on the some principle of closing or opening the circuit, but their design are more complex. Some of the electrical appliances which have inbuilt switch are table fan, room heater, room cooler, mixer and grinder, table lamp, washing machine, hair dryer, drilling machine, torch, television, radio set, microwave, oven, etc. We can also make a simple electric switch ourselves. अब स्विच का उपयोग सर्किट बल्ब और अन्य के सर्किट में भी किया जाता है। हमारे घरों में विद्युत उपकरण सर्किट को बंद करने या खोलने के एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, लेकिन उनके डिजाइन अधिक जटिल होते हैं। कुछ बिजली के उपकरण जिनमें इनबिल्ट स्विच होते हैं, टेबल फैन, रूम हीटर, रूम कूलर, मिक्सर और ग्राइंडर, टेबल लैम्प, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, ड्रिलिंग मशीन, टॉर्च, टेलीविजन, रेडियो सेट, माइक्रोवेव, ओवन आदि अपने आप को एक सरल विद्युत स्विच बनाते हैं। एडिंग ए स्विच टू द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच जोड़ना। वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट consisting of a cell, a torch bulb and two wires which make the bulb light up. Now if we want to turn the bulb on and off easily, we should add a switch in the circuit. This can be done as follow. We have a cell having a positive terminal plus and a negative terminal minus. The positive terminal of the cell is connected to one end of the switch with wire, another wire connected to the other and in the switch to the one side of the bulb holder. The negative terminal of the cell connected to the other in the bulb holder directly by means of a wire. Thus, if the positive terminal of a cell connected to the bulb holder through a switch, but of the negative terminal of the cell is connected to bulb holder directly. इलेक्ट्रिक सर्किट को स्विच से जोड़ना। हमने पहले ही एक इलेक्ट्रिक सर्किट का वर्णन किया है। एक सेल, एक मसाल बल्ब और दो तारों को मिलकर जो बल्ब को हल्का बनाते हैं। यदि आप बल्ब को ऑन ऑफ कैंसिलों से बदलना चाहते हैं तो हम सर्किट को एक स्विच से जोड़ना चाहिए।
यह निम्नानुसार किया जा सकता है। हमारे पास एक सेल है जिसमें एक सकारात्मक टर्मिनल प्लस और एक नकारात्मक टर्मिनल माइनस है। सेल का धनात्मक टर्मिनल के एक तार का स्विच के एक छोर से जुड़ा होता है, एक अन्य तार बल्ब धारक के एक तरफ स्विच के दूसरे छोर पर जुड़ता है। सेल के एक स्विच के साथ नकारात्मक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सर्किट सीधे तार के माध्यम से बल्ब धारक के दूसरे जोड़ में जुड़ जाता है। इस प्रकार सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक स्विच के माध्यम से बल्ब होल्डर से जुड़ा होता है, लेकिन सेल का नेगेटिव टर्मिनल सीधे बल्ब होल्डर से जुड़ा होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, सलाहकारों और निरीक्षकों। सम मटेरियल्स allow electric current to pass through them, whereas the materials do not allow an electric current to pass them through them. On the basis of this property, we can divide all the materials around us into two groups, conductor and insulator. कुछ सामग्री विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने देती है, जबकि अन्य सामग्री किसी विद्युत प्रवाह को उनके पास से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। इस संपत्ति के आधार पर हम अपने आसपास के सभी सामग्रियों को दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। सलाहकारों और निरीक्षकों द्वारा। कंडक्टर, those materials which allow electric current to pass through them are called conductor. The flow of electric current is called electricity. So we can also say that those materials which allow electricity to pass through them are called conductor और electricity. वह सामग्री जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति देते हैं उन्हें कंडक्टर कहा जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह को विद्युत कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो सामग्री बिजली से गुजरने की अनुमति देती है उसे कंडक्टर कहा जाता है। All the material are conductor or electricity. Silver metal is the best conductor of electricity. Copper and aluminum metal are also good conductor. Electricity wires are made of copper and aluminum because they are good conductor of electricity. Other metal like iron, steel, mercury, gold, etc. are also conductor. The metal are also conductor of electricity. All the objects made of metal are also conductor. For example, the objects such as coins, key, pins, aluminum foil, sewing needle, iron nail, etc. are all conductor of electricity. A non-metal called carbon is also a conductor of electricity. The thin black core of or pencil is called pencil lead. Pencil lead is made of graphite, so pencil lead is also एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी धातुएं विद्युत का संवाहक है। चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और एल्युमिनियम धातु से अच्छे संवाहक होते हैं। विद्युत तार तांबे के एल्युमिनियम से बने होते हैं क्योंकि ये विद्युत का सुचालक होते हैं। अन्य धातुओं जैसे लोहा, स्टील, पारा, सोना आदि भी संवाहक है। धातु मिश्र धातु भी विद्युत के संवाहक है। धातुओं से बनी सभी वस्तुएं भी संवाहक है। मंदिर में वस्तुएं जैसे सिक्के, चाबी, पिन, एल्युमिनियम फॉयल, सिलाई, सुई, लोहे की कील आदि सभी बिजली के संवाहक हैं। एक गैर धातु जिसे कार्बन कहा जाता है वह भी बिजली का एक कंडक्टर है। पेंसिल के पतले काले कोर को पेंसिल लीड कहा जाता है। पेंसिल लीड ग्रेफाइट से बना होता है तो पेंसिल लीड बिजली का संवाहक है। The human body does not conduct electricity as good as metal. The human body conducts electricity to a small extent, so the human body is a poor conductor of electricity. A person gets electric shock on touching on uncovered electric wires carrying current because some electric currents pass through his body. Water also conducts electricity to a small extent, so water is also a poor conductor of electricity. If a person operates an electric switch with wet head, he can get an electric shock because water present on the hand can conduct some electricity from the switch into his body. We should therefore operate the switches of electrical appliances with dry hand. मानव शरीर की धातुओं में की तरह बिजली का संचालन नहीं होता। मानव शरीर के कुछ हद तक पर बिजली का संचालन होता है। जो मानव शरीर बिजली के एक
एक कंडक्टर जैसे कार्य करता है। एक व्यक्ति को विद्युत प्रवाहित बिजली की तार को छूने पर बिजली को झटका लग जाता है, क्योंकि कुछ विद्युत प्रवाह उसके शरीर से गुजरता है। पानी में कुछ हद तक बिजली का संचालन करता है, इसलिए पानी भी बिजली का एक खराब कंडक्टर है। यदि कोई व्यक्ति गीले हाथों से में इलेक्ट्रिक स्विच चलाता है तो उसे बिजली का झटका लग सकता है, क्योंकि गीले हाथ में मौजूद पानी का उसके शरीर में स्विच में उसके बिजली का संचालन कर सकता है। इसलिए हम सूखे हाथों से इलेक्ट्रिकल उपकरण के स्विच का संचालन करना चाहिए। इंसुलेटर रोचक। Those materials which do not allow electric current to pass through them are called insulator. In other words, those materials which do not allow electricity to pass through them are called insulator. Insulator are actually are non-conductor of electricity. Rubber. वह सामग्री जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से पारित करने की अनुमति नहीं देते हैं उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, उन सामग्री को बिजली से गुजरने की अनुमति नहीं देते उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। इंसुलेटर वास्तव में बिजली के गैर कंडक्टर होते हैं। रबड़। प्लास्टिक, केमिकल्स, पैरोसिलिन, wood, glass, mica, cotton, jute, thermocol, bags, paper, air, and most of the gases are insulator. They do not allow electric current to pass through them. All the objects made of insulated materials are all insulators, also insulator. For example, rubber is an insulator, therefore an eraser and balloon are also insulator. Wood is an insulator, so a wooden block, cork, and matchstick are also insulator. Plastic is an insulator, therefore a plastic scale, polythene bags, and nylon sock are also insulators. Similarly, a candle and a gas bangle are also insulator. The outer covering of electric wires is made of plastic because plastic is an insulator. Plastic covering does not allow electric current to pass through it. Air is an insulator. In other words, air is a non-conductor of electricity. When a electric switch is in the off position, then the air is present between the end of the wires connected to the switch. Since air is a non-conductor of electricity, electricity is not conducted across the gap between the ends of the wires in the switch, and hence the bulb does not light up. प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, परमवीर, बैकेलाइट आदि, चीनी मिट्टी के बर्तन, लकड़ी, कांच, अभ्रक, कपास, जूट, थर्माकोल, मोम, कागज, हवा और अधिकांश गैसें इंसुलेटर हैं जो विद्युत प्रवाह को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। अछूत सामग्रियों से बनी सभी ऑब्जेक्ट्स भी इंसुलेटर है। उदाहरण के लिए रबड़ एक इंसुलेटर है, इसलिए एक इरेजर और गुब्बारा भी इंसुलेटर है। लकड़ी एक इंसुलेटर है, इसलिए एक लकड़ी का ब्लॉक, कार्क और माचिस भी इंसुलेटर है। प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, इसलिए एक प्लास्टिक स्केल, पॉलीथीन बैग और नायलॉन मोजे भी इंसुलेटर हैं। इसी तरह एक मोमबत्ती और एक ग्लास चूड़ी भी इंसुलेटर है। बिजली के तारों और बाहरी आवरण प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक का वह विद्युत प्रवाह को उसके माध्यम से पारित करने में अनुमति नहीं देता है। एक इंसुलेटर है, दूसरे शब्दों में वायु संकेतन का एक गैर संचालक है। जब एक बिजली के स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो हवा स्विच में से जुड़े तारों को सिरों से बीच की मौजूद होती है। चूँकि हवा बिजली का एक गैर संवाहक है, इसलिए स्विच के तारों के सिरों के बीच बिजली का अंतर नहीं होता है और इसलिए बल्ब प्रकाश नहीं दे आता है। Importance of conductor and insulator. Conductors and insulator are equally important for us because they are both useful in chair. One way conductors are used to carry electricity. For example, electricity is carried in our homes by copper wires because copper are conductor of electricity. The electricity used in our homes can be dangerous. A person will get an electric shock if he touch a wire carrying electricity. A person will get an electric shock if he touches a wire carrying electricity. It can even kill a person. Insulator are used for safety. Insulator protect
us from getting electric shock. Insulator allow us to handle current carrying wire, switch, plugs, socket and other electric appliances safely. For example, the electric wires are covered with insulator like plastic wire or rubber. Being an insulator, plastic covering does not conduct electricity flowing through the wire into our body when we touch it. So if we happen to touch a current carrying wire covered properly with plastic insulator, we will not get an electric shock. Covering on the wires protect us from the electrics that a flowing through the wires. In other words, the plastic insulator makes the electric wires safe to touch, just like electric wires, electric switch and electric plug etc. are also covered with insulated material like plastic to protect us from the electric passing through them. अब हम देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर और हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह दोनों उनके लिए उपयोगी है। कंडक्टर का उपयोग विद्युत प्रवाह करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे घरों में तांबे के तारों या एल्युमिनियम तारों द्वारा इलेक्ट्रिसिटी किया जाता है। और क्योंकि तांबे और ल्यूमिनस बिजली के कंडक्टर है, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली खतरनाक हो सकती है। एक व्यक्ति को बिजली का झटका लगेगा यदि वह बिजली ले जाने वाले नंगे तार को छूता है। यदि किसी व्यक्ति को मर भी सकता है, इसलिए इंसुलेटर सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलेटर हमें बिजली के झटके से बचाता है। इंसुलेटर हमें वर्तमान ले जाने वाले तारों और स्विच, प्लग, किट और अन्य विद्युत उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए संभालने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए बिजली तारों को प्लास्टिक या रबर जैसे इंसुलेटर को ढका जाता है। एक इंसुलेटर होने के नाते प्लास्टिक कवर हमारे शरीर के तार को माध्यम से बहने वाली बिजली का संचालन नहीं करता जब हम इसे छूते हैं। इसलिए यदि हम प्लास्टिक इंसुलेशन के साथ ठीक से ढके एक वर्तमान ले जाने वाले तार को छूने के लिए होते हैं तो हमें बिजली का झटका लग जाता है। इस प्रकार तारों को कवर करने वाला प्लास्टिक हमें उससे बिजली से बचाता है और तारों से में बह जाती है। दूसरे शब्दों में प्लास्टिक इंसुलेशन बिजली के तारों को छूने के लिए सुरक्षित बनाता है। बिजली के तारों की तरह बिजली का स्विच और बिजली के प्लग आदि को भी हमारे पास गुजरने वाली बिजली को बचाने के लिए प्लास्टिक जैसी अछूता सामग्री के साथ कवर किया जाता है। The knowledge about the conducting or insulating properties of varieties materials is used in choosing materials for making electrical component and appliances like electric wires, electric switch, electric plug, electric socket, electric iron, toaster, oven etc. विभिन्न सामग्री गुणों या इंसुलेटिंग गुणों के बारे में ज्ञान का उपयोग बिजली के घटकों और उपकरणों जैसे बिजली के तार, बिजली के स्विच, बिजली के प्लग, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन आदि बनाने के लिए सामग्री चुनने में किया जाता है। The part of an electrical component of appliances through which electric current has to pass are made of conductor like metal or metal alloy. एक विद्युत घटक या उपकरण के वह हिस्से जिनसे विद्युत धारा गुजरती है वह कंडक्टर जैसे धातु या धातु के मिश्र धातु होते हैं। Those part of an electrical component or appliance which are touched by us while handling are made of insulator like plastic, rubber or wood etc. so that current might not pass through them. विद्युत घटक या उपकरण के वह भाग जो हमारे द्वारा स्पर्श किए जाते हैं वो उसमें हैंडलिंग प्लास्टिक, रबड़ या लकड़ी आदि के जैसे इंसुलेटर के बने होते हैं ताकि करंट न लगे, उनके पास से गुजरना पड़े। द पिंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक प्लग आर मेड ऑफ मेटल विच इज ए कंडक्टर बट द आउटर केस इज मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज एन इंसुलेटर। द इनर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल सॉकेट आर। एक बिजली के प्लग के पिन धातु से बने होते हैं जो कंडक्टर का होता है, लेकिन बाहरी मामला प्लास्टिक से बना होता है जो एक इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिक स्विच और इलेक्ट्रिक सर्किट के आंतरिक भाग हैं मेड ऑफ मेटल बट देयर आउटर केस इज मेड ऑफ प्लास्टिक। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ मेटल अलाउ बट दिस हीटिंग element of enclosed in a sheet of mica which in an insulator. The handle and top part of an electric iron
are made of plastic, which is also an insulator. Rubber, plastic, and ceramics are often used or protect us from the dangers of electric because they are good insulator. For example, electrician wear rubber and gloves while handling naked electric wires because rubber is a good insulator and protect them from electric shock. The handles of tools like screwdriver and pillar used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. This is because plastic and rubber are insulators which protect the electrician from electric shocks when he is handling current carrying electrical appliances. It is advisable to wear rubber-soled shoes or rubber chappals while operating electric shock appliance. This is because rubber is an insulator which will protect us from electric shock in case there is a leakage of electric current from the appliance. धातु कंडक्टर से बना होता है लेकिन उनका बाहरी मामला प्लास्टिक से बना होता है। विद्युत लोहे की का हीटिंग तत्व एक धातु मिश्र धातु से बना होता है लेकिन यह हीटिंग तत्व अभ्रक की एक शीट से में संलग्न होता है जो एक इंसुलेटर है। एक इलेक्ट्रिक आयरन का हैंडल और ऊपरी हिस्सा प्लास्टिक से बना होता है जो एक इंसुलेटर भी होता है। रबर, प्लास्टिक और चीनी मिट्टी का चीज़ें अक्सर हमें बिजली के खतरों से बचाने के लिए उपयोग की जाती हैं क्योंकि वह अच्छे इंसुलेटर होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली के तारों को नग्न बिजली के तारों को संभालने के दौरान इलेक्ट्रीशियन रबर के हाथ में दस्ताने पहनता है क्योंकि रबर एक अच्छा इंसुलेटर है और उन्हें बिजली के झटके से बचाता है। मरम्मत के काम के लिए बिजली कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर्स और सरोता जैसे उपकरणों के हैंडल में आमतौर पर प्लास्टिक या रबर कवर होते हैं। इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर हैं जो बिजली के झटके से बिजली की रक्षा करते हैं और जब वह वर्तमान ले जाने वाले विद्युत उपकरण को संभाल रहे होते हैं तो बिजली के झटके वाले उपकरण को संचालित करते समय रबर सोल वाले जूते या रबर की चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रबर एक इंसुलेटर है जो उपकरण से विद्युत प्रभाव का रिसाव होने पर स्थिति में हमें बिजली के झटके से बचाएगा। थैंक यू।